وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لاہور رجسٹری میں سماعت کی۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی طرف سے ایڈوکیٹ عرفان قادر عدالت میں پیش، دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے، منگل تک کیس کا حتمی فیصلہ کر دیں گے چیف جسٹس۔ حکمران اتحاد کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کا مطالبہ۔ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر کے احتساب سے بچنا چاہتے ہیں۔ کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ان کا مقصد ہے۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فسادیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، حکمران اتحاد کا عزم۔ الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے، عمران خان پر بھی قانون کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے۔ قاسم سوری 2.5 سال حکم امتناع پر ڈپٹی اسپیکر رہے، نواز شریف کو خیالی تنخواہ پر نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان اداروں کی کردار کشی کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ تحریک انصاف نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہے، ہمیں ان کی مثبت ذہن سازی کرنی ہے۔ معاشرے میں امن و استحکام کے لیے عدالتوں کا احترام ضروری ہے۔ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا۔ عمران خان ضمنی الیکشن جیت کر بھی اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان کی دھونس، دھمکی اور گالی سے آئین اور قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ چودھری شجاعت نے اپنے ارکان کو وہی ہدایات جاری کی جو عمران خان نے کی تھیں۔ رولنگ عمران کے حق میں ہو تو آئینی اور حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی۔ عمران صاحب آپ کا جھوٹ، فساد اور منافقت ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، مختلف حادثات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 12 افراد جاں بحق۔ جڑواں شہروں سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ مونسون بارشوں کا تیسرا بڑا طاقتور سپیل بلوچستان میں داخل، متعلقہ اداروں کے حکام کو الرٹ جاری۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में समाअत की है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से एडवोकेट इरफान कादिर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते, मंगल तक केस का हतमी फैसला कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की समाअत की। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मुश्तरका मुतफ़क्का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके तहत हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पुरजोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुतालबा किया है कि करीन इंसाफ होगा कि अदालत उज़्मा के तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके उस पर फैसला सादिर करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामलात हैं। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत के दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है, जिसका मकसद एहतसाब से बचना और अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल करना है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपने जाती मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीट रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का यह कहना है कि इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए इदारों की किरदार कुशी कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। आज तक किसी ने इमरान खान को बुलाकर नहीं पूछा कि तौहीन अदालत क्यों कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि आइन और कानून के सामने सबको बराबर होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कल किसी भी वोट पर कोई दावा नहीं किया गया कि पैसा चला या धौंस से बदला गया। इमरान खान झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है। मुसलसल वावेला किया गया कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। कौम जिस कदर जल्द हो उसका असल चेहरा पहचान ले। कल जो दोनों तरफ से 186 और क्यू लीग के वोट माइनस करके 176 और 179 का जो फिगर सामने आया है, वो इस बात का सबूत है कि पीटीआई का ये टोला जो है अपने सरबराह से लेके नीचे तक जो है गुमराही फैलाने, झूठ बोलने और झूठा प्रोपागेंडा करने का मास्टर है। और इनकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, किसी बात को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि माशरे के अमन व इस्तेहकाम के लिए अदालतों का एहतराम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून अदालतों का एहतराम करती है। इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाना चाहिए, वरना पीटीआई का फितना और फसाद ऐसे ही नौजवानों को गुमराह करता रहेगा। वज़ीर दाखिला ने खबरदार किया कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने जारी की थी। वज़ीर इत्तलात ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में तो गैर आइनी। इमरान साहब, आपका झूठ, फसाद और मुनाफकत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुल्क 4 साल तरक्की नहीं
मुल्क 4 साल दिवालिया हो रहा था। 4 साल लूटा जा रहा था मुल्क को। मुल्क के रोजगार पर 4 साल डाका डाला जा रहा था। 4 साल मुआशी तबाही हो रही थी। मुल्क में 4 साल बुशरा गोगी कार्टल्स माफिया का राज था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वोट देने का इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को दिया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी की हिदायत की रोशनी में वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले को डी-सीट करने का हुक्म दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आइन के साथ खिलवाड़ और आइन की तशरीह इमरान खान की धौंस धमकी और गाली से नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आइन से बनी है, आइन के इख्तियार से चलती है। 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद हुए हैं। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि सियासी मामलात पर फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। हमें मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। मुशीर बराए उमूर कश्मीर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के अरकान ने अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दिया। इमरान खान किस मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने अपनी जमात के अरकान को वोट से मुतालिक मुतला किया था। गैर आईनी, गैर कानूनी उनके जो तरीक़ाकार थे, जो असम्बली को उन्होंने के अंदर उन्होंने आइन का खिलवाड़ किया, उस पर रात को मुअज़्ज़ज़ जज साहबान आके सुप्रीम कोर्ट बैठे तो हुकूमत वक्त उस पर की इमरान खान साहब वो बड़े चरापा हुए कि ये क्यों आके बैठे हैं जज साहबान, क्यों रात को अदालतें लगती हैं। और आज खुद वो रात को 12 बजे अदालत पहुंचे, यानी उनकी जमात पहुंची, खुद जो है वो अब जाके पहुंचे तो ठीक है, और कोई करे तो गलत है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि कल का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था। अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक होने वाले इलेक्शन को किस बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है। अपने एक बयान में वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि उम्मीद है इस मामले को मजीद उलझने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को इस आइनी मामले की तशरीह करनी चाहिए। पंजाब के 25 सूबाई अरकान असेंबली को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर डी-सीट किया गया था। इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ शादियाने बजा रही थी। उन्होंने कहा कि अब जब इसी फैसले के मुताबिक PMLQ के दस्तरखान का वोट मुस्तरद किया गया तो वही तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। शिकस्त के बाद इमरान खान ने अपने ही मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है। वफाकी वजीर ने कहा कि अप्रैल में बहैसियत पार्टी चेयरमैन पंजाब के MPAs को पाबंद कर रहे थे कि वो परवेज़ इलाही को वोट डालें। अब कहते हैं पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो फैसला करता है अरकान उस पर वोट देते हैं। क्या वो तब पार्लिमानी लीडर थे? उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी इनके हवासों पर सवार हैं। कल दुनिया ने देखा कि किसी के वोट नहीं खरीदे गए। शेरी रहमान ने कहा कि नए सियासी इत्तेहाद बनाना, आईनी और जमहूरी अमल और इलेक्शन में जमहूरी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करना सियासी जमातों का हक है। विफाक की तरह पंजाब में भी इमरान खान को मांगे तांगे के इत्तेहादी छोड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका ये कहना था कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने की बातें कर रहे हैं। इनका सामना आने वाले दिनों में नई मुस्लिम लीग नून से होगा। हमें मजबूर किया गया तो इमरान खान को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए हर मुमकिन कोशिशें की। हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। एहतसाब का अमल बराबरी की सतह पर होना चाहिए। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। इमरान खान साहब फिर एक दफा सुल्तान राय बन के अपने फैसले अपने हक में लेना चाह रहे हैं। बार बार कहते हैं कि ये श्रीलंका बन जाएगा, इंतशार आएगा, और इंतशार आपके कहने से, आपकी गीदड़ भभकियों से नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस तरह इनकलाब लाने की कोशिश की है वो हमने देख लिया है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों ने कल आइन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की है। अता तारड़ ने मुतालबा किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठना चाहिए। ये एक अहम नौयत का मामला है जिसकी तशरीह ज़रूरी है। एक तरफ पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात का बताया जाता है, जबकि दूसरी तरफ इख्तियारात इस्तेमाल करने नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि जिन सियासी जमातों ने पंजाब में आइनी बहरान पैदा किया हुआ है वो किस मुंह से कोर्ट में गए हैं। इस मामले को फुल कोर्ट के अलावा न सुना जाए। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है और अब वक्त आ गया है कि आइन की शिकों की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बेंच फैसला करे। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। कोरोना केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इससे मुतालिक सदफ अफसल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए और 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,423 अफराद के टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 2.96% रिकॉर्ड की गई। इस सूरत हाल के पेश नज़र वजारत सेहत और NCOC ने शहरियों के लिए जरूरी हिदायत दी हैं, जिनके मुताबिक शहरी समाजी फासला यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और SOPs का खास ख्याल रखें। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार खुसूसी एहतियात करें। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल हवाई अड्डों, ज़मीनी रास्तों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और कई बार आगाही के लिए कैंपेन्स भी चलाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज नहीं लगवाते या उनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उनको अंडरलाइंग कोई बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कोई किडनी डिजीज़ है, किसी को और कोई बीमारी है, तो उस सूरत में कोरोना से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर जब आप खुद इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी फैमिली, आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी जो एक के बाद एक वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो मौजूदा वेरिएंट BA.5 जो है उसका फैलाव काफ़ी तेज़ी से देखने में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैलाव है उसका। एक इंसान काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और वही सारे SOPs पर अमल करें जो शुरू में इंट्रोड्यूस करवाए गए कि आपने समाजी फासला रखना है, मास्क पहनना है और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है। और यही वो बात है जो हम सुनते आ रहे हैं। और क्या नाम है हमारा सलमा, हम देखते रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार रही है, उसके बाद सूरत हाल इस कदर गंभीर हुई कि मुआशी सतह पर हमें पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अशाया ज़रूरिया की फ्राहमी किस तरह से बंद हो गई, बॉर्डर्स बंद हुए और अब दोबारा से अगर दुनिया ओपन हो रही है तो एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ वेरिएंट्स का सामना है। इसी हवाले से हम डॉक्टर मदिया से बात भी करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैसे देख रही हैं जो छठी लहर है कोरोना की, इसमें केसेस जो सामने आ रहे हैं, वेरिएंट तब्दील हुआ है, सिम्टम्स भी कुछ तब्दील हुए हैं, एसिम्टोमेटिक ज़्यादा हैं लोग इस कोरोना वायरस में? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल जी, कोरोना की दोबारा से हम सर्च देख रहे हैं और केसेस जो हैं वो पहले से बढ़ना शुरू हो गए हैं। फॉर्चुनेटली जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई थी उनके केस में सिम्टम्स जो हैं उस पर माइल्ड हैं। ज़्यादातर फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है और बॉडी एक्स हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की वैक्सीन नहीं हुई हुई है उनमें अगेन हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो पहले से ख़राब होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हम देख रहे हैं। जिस तरह अभी मेरे साथी एंकर ने भी सवाल किया कि एसिम्टोमेटिक अगर केसेस होते हैं तो उस सूरत में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। जिन लोगों में सिम्टम्स हैं वो कितने स्वेयर होते हैं और किन लोगों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं? जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं उनमें सिम्टम्स किस तरह के आएंगे? क्या उसी तरह से गला ख़राब होगा, बुखार होगा या बुखार की शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं होगी?
نہیں جی، بخار کی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویکسین انہوں نے فل کروائی ہے، انہوں نے بوسٹر ڈوز لگوائی ہے کہ نہیں، کیونکہ جن لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگی ہے ان کے کیس میں ہم مائلڈ سمٹمز دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسپریڈ نہ کرے، آئسولیشن وہ پراپر کریں، اور ان کو ساتھ میں سمٹومیٹک مینجمنٹ ہم دے رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی ویکسین کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ان کو اسی طرح سے ریسپیریٹری سمٹمز آ رہے ہیں، ان کی چیسٹ خراب ہو رہی ہے، ایکس ریز اور HRCT میں بھی ہم چینجز دیکھ رہے ہیں، اور آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس میں بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی پہلے سے پری ماربڈس کیا ہیں، کیا وہ ڈائبیٹک ہے، کیا وہ ہائپرٹینسو ہے، یا وہ کوئی ایسی دوائیاں لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے۔ یہ سارے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سیویرٹی کا ان سب بیماریوں کا کووڈ-19 کی سیویرٹی پہ کافی اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت پوری دنیا کو اس چھٹی لہر کا سامنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو ویریئنٹس نئے آئے ہیں ان کی وجہ سے ایک تو اس کا پھیلاؤ زیادہ تیزی سے ہوا، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پابندیاں نافذ کی گئی ہیں، گو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر اس چھٹی لہر کے اثرات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بالکل ہم پہلے بھی پاکستان میں ہم نے بہت ٹائملی اپنی مینجمنٹ کی، اور ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس ٹائملی کیے، اور الحمدللہ ہماری ویکسینیشن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے۔ لیکن فارن کنٹریز میں ویکسینیشن کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے وہ، کیونکہ وہ فریڈم آف تھاٹ ہے کہ جی آپ لگوائیں، آپ ہمیں زبردستی نہیں لگوا سکتے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ویکسینیشن سٹل بہت کم رہی ہے۔ دوسرا، وہاں ان کو بہت ریزسٹنس ملی ماسک پہننے میں، ان کو کیا کہتے ہیں اسے سوشل آئسولیشن کرنے کے لیے، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہ کیونکہ وہاں کی انوائرمنٹ ہمارے سے ڈفرینٹ ہے، وہ زیادہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو کچھ بہت ساری یہ فیکٹرز جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ اسٹرانگ لہر دیکھ رہے ہیں یورپین ممالک میں ایز کمپیئر ٹو ہماری ملک میں۔ لیکن ابھی بھی ہماری بھی ملک میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا اور ہینڈ واش کرنا، سینیٹائز کرنا، یہ میئرز ابھی بھی بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اس سرچ کو ٹائملی جو ہے وہ کیٹر کر سکیں، یہ بڑھے نا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، ابھی کچھ ہی دن پہلے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور ان کی ملاقات ہوئی تھی USAID کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ، اور پاکستان اور امریکہ 5 سال سے 11 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ بچوں کی ویکسینیشن کتنا چیلنجنگ کام ہے، کتنا جلد یہ مکمل ہو پائے گا، اور جب بچے ویکسینیٹڈ ہوں گے تو کیا جو چھوٹی ایج کے جو بھی لوگ ہیں، بچے ہیں یا جو تھوڑے گروئنگ ایج میں بچے ہیں، ان میں یہ کیسز اب ہمیں کم دیکھنے کو ملیں گے؟ جی بالکل، ہمارا جو شروع میں سرچ آئی تھی اسی لیے اسکولز بند کیے گئے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں، ان کے کیس میں سمٹمز اتنے سیویئر نہیں ہوتے ہیں، اور زیادہ ان سے رسک یہی ہوتا ہے کہ جو گھر کے ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے ڈیزیز۔ تو اس سلسلے میں جو ایک میجر بریک تھرو تھا وہ یہ تھا کہ 12 ایئرز آنورڈ جو ہے بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا، اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے تھے۔ ایون 5 ایئرز آنورڈ جو ہے وہ بھی اب بالکل جو باہر کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹارٹ کر دی گئی ہے، اور فیوچر میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ بچوں میں آلریڈی ہمیں ڈیزیز کا رسپانس بھی بہت کم ملتا ہے، تو ویکسینیشن کا پروسیس بھی سکسیسفل ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک تو کووڈ-19 کا چیلنج درپیش ہے، ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو موسمی حالات ہیں پورے پاکستان میں، بارشیں، مونسون اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے بہت سارے وبائی امراض بھی ہیں۔ ایسے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ کون کون سی بیماریاں ہیں جو متاثر کر سکتی ہیں انسان کو؟ جی بالکل، آج کل کا جو سیزن ہے وی آر سیونگ لاٹ آف پیشنٹس کے جو الرجک سمٹمز ہیں، جس میں کہ باڈی پہ خارش ہونا ہے، ریش اپیئر ہونا ہے، ایون شارٹنیس آف بریتھ ہے، کھانسی ہے، یہ سب چیزیں ہم بہت دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم نے اپنے ہاسپٹلز میں بہت زیادہ انکریز انسیڈنس دیکھا ہے ایکیوٹ گیسٹرونٹائٹس کا، کولرا کے بہت سے سمٹمز ہم پیشنٹس میں دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج کا ویدر ہیومڈ ہے، کوئی بھی چیز جو کھانے کی تھوڑی دیر بھی باہر پڑی رہتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹس جو ہیں ان کو موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ 2-3 مین سمٹمز ہیں جو کہ ہم آج کل بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ جی کھانا فریش کھائیں، اور حت الوسع اپنے گھر کو سن لائٹ سے ایکسپوز کریں، گھروں کے جو چادریں وغیرہ ہیں ان کو ٹائملی جو ہے سن لائٹ کا ایکسپوجر دیں، اور کوشش کریں کہ گھر کی ونڈوز وغیرہ اوپن کریں تاکہ گھر ہوادار ہو، اور یہ کہ جن لوگوں کو آلریڈی الرجک سمٹمز ہیں وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔
اور اپنے مولد سے ٹائملی رجوع کریں اگر ان کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، تاکہ وہ بڑھے نہ، اس کو اسی وقت روک دیا جائے اور اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ نذر، آپ نے بڑی تفصیل سے کورونا کے بارے میں بات کی، جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں، اس کے سمٹمز کے بارے میں، اور آپ نے جتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے بچوں کو بھی ویکسینیٹ کرنا ہے، اپنے گھروں کو ہوادار رکھنا ہے اور اپنی ڈائٹ اچھی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ یہی ہو سکتا ہے کہ عوام کو ویکسینیٹ کیا جائے، اور شہریوں کی پارٹیسپیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تمام اقدامات جن کے بارے میں ڈیسیجن لیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ آج اس گرمی میں ملاقات کریں گے ہم کیسر احمد شیخ صاحب سے۔ So let's go to چنیوٹ۔ اب زندگی میں کیا خواہش باقی رہ گئی؟ میری زندگی میں بہت بڑی خواہش ہے، برننگ ڈیزائر ہے کہ میں فائنانس منسٹر بن کے ملک کی اکانومک حالات کو میں سمجھتا ہوں میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں، یونیورسٹی آپ نے فاسٹ یونیورسٹی یہاں پہ بنائی ہے، DC یونیورسٹی بنائی ہے، ہاسپٹل بنایا ہے، تو ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ فاسٹ یونیورسٹی کا یہاں پر کیمپس ہے۔ جی جی، کتنے چنیوٹ اسٹوڈنٹس کیمپس، چنیوٹ کیمپس؟ یہاں 2000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ کتنے پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں روزانہ؟ 300 to 400 ہماری OPD ہے ڈیلی کی۔ گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی، بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی، موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت، یا ہو کھیل کا میدان، خیر کی آواز اٹھنی چاہیے منبر و محراب سے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے۔ کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل؟ کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار؟ دیکھیے چوتھا ستون، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، صرف PTV نیوز پر۔ تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے۔ پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں، سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں۔ تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں۔ ہر معتبر خبر سچ ہے۔ نیوز شو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب کچھ بات کریں گے ہم ریلیف کے حوالے سے۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء ضروریہ کی سستے داموں دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں رانا افتخار احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر خصوصی سبسڈی دے رہی ہے اور مارکیٹ کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ گھی، چینی اور آٹے کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں بہت زیادہ انسینٹیو دی ہے،
जिसकी वजह से ये रैपिडली सेल इसकी बहुत तेज़ हो गई है। घी का तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 रुपये पर केजी का फ़र्क है, चीनी का 25 रुपये पर केजी का फ़र्क है, और इसी तरह आटा कम से कम 500, 550, 600 रुपये का फ़र्क है। यूटिलिटी स्टोर में जितनी भी चीज़ें वाफर मकदार में हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती लेने में, रेट भी मुनासिब है, बाहर की निस्बत तो बहुत अच्छे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये और 10 किलो आटा 400 रुपये में फ्राहम किया जा रहा है। इसके अलावा चावल और दालों समेत दूसरी अशिया पर भी रायत दी जा रही है। चीनी 350 रुपये की 5 किलो है, बाहर महंगी है, और बाकी घी यहाँ पे 300 रुपीज़ पर केजी दे रहे हैं, बाहर महंगा है। मार्केट से जो है ना बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती है। मार्केट से कीमत घी की खास करके चीनी की कम है। कीमतें ठीक है, कीमतों को बहुत मुनासिब है। घी 5 किलो मिलना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया के स्टॉक की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है ताकि आवाम को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। राना इफ्तिखार अहमद ने रिपोर्ट किया जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं पाकिस्तान भर में, उन पे तमाम अशिया मौजूद है और गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जो रिलीफ दिया जा रहा है, वो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इन दिनों, क्योंकि रिजवान हम देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, बहुत से आलमी सतह पर महंगाई के असरात ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी आते हैं। हमारा एक ख़ास तबका, एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं खाने पीने की, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने खास तौर पर रियायती पैकेजेस दिए हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आटा, चीनी, चावल, दालें, उन पर रिलीफ दिया जा रहा है ताकि तमाम को मेंशन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, रिलीफ को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। सैयद आबिद हुसैन शाह मैनेजर हैं इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर्स के, आप हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आबिद हुसैन शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए। सर बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का स्टॉक, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अगर हम इस्लामाबाद रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रिमोट यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर ये शिकायत मिलती हैं कि वहाँ पर स्टॉक दस्तयाब नहीं है, बहुत महदूद मिक़दार में चीज़ें फराहम की जाती हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो भी स्टोर रूरल एरिया का या अर्बन एरिया का जो भी होता है ना जी, उसमें उसके स्टॉक उसकी दसामत के हिसाब से और सेल के हिसाब से, जिनके उसके मज़ाफ़ात में कितनी आबादी है, या जैसे कैसे कंजम्पशन कितनी है, उस लिहाज से सुबह शाम को हम जब डिमांड करते हैं तो सुबह ऑलरेडी पूरा शेड्यूल बना होता है और गाड़ियां हर साइड पे निकल जाती हैं और अवेलेबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है। ये अभी आपकी टीम भी आज आई थी, हमने दिखाया, कोई ऐसा इशू नहीं है। घी, चीनी, आटा, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इवन के जनरल आइटम भी बिल्कुल 100% अवेलेबल है। अच्छा आबिद साहब, बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स वो एरियाज जहाँ पर नहीं है, स्टोर्स की एक्सेस नहीं है, वहाँ पर मोबाइल स्टोर्स का भी आगाज़ किया गया है ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों जिनके अपने एरिया में नहीं थे स्टोर्स या जिनको दूर जाना पड़ता था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उनमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कितना स्टॉक होता है, कौन से एरियाज को कवर करते हैं? वो जितने एरिया ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेस यानी यूटिलिटी स्टोर के लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं आना जाना, वो तकरीबन वो सारे इलाके हम कवर करते हैं। उसमें मोबाइल्स के लिए ज़रूरी होता है कि जो सब्सिडी आइटम, ज़रूरी अशिया जो ज़िंदगी के लिए है, दालें हैं, चावल है, घी है, आटा है, ये चीज़ें हम लाजमी उसमें यानी इतनी मकदार में होती हैं कि कम से कम वो सुबह से शाम तक जितने भी लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें वो ले लें। और उनका रूट बनता रहता है मुख्तलिफ इलाकों में, वो यानी शेड्यूल शाम को बना दिया जाता है, वो इस तरह सुबह वो अपना चीज़ें देके वो निकल जाते हैं। आबिद हुसैन शाह साहब, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टोर्स भी हैं जो कंपटीशन में हैं, जिनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अशिया की वाफिर मिकदार अपने स्टॉक में रखते हैं। क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत दी जाती हैं ताकि किसी भी सतह पर शफाफियत मुतासर ना हो। इस हवाले से इस्लामाबाद सर्कल में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बतौर मैनेजर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें सर जी सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ये POS निज़ाम हमारा चलता है, उसमें शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर हम यूज़ करते हैं। उसका बहुत शफाफियत, बहुत साफ शफाफ उसका सारा निज़ाम है कि वो जो बंदा आएगा वो अपना शिनाख्ती कार्ड हमें देगा, हम उसको सबमिट करेंगे उस सिस्टम के अंदर, और मोबाइल नंबर देगा। फिर उसको जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ है क्राइटेरिया के 5 किलो उसको घी मिलना है,
5 किलो चीनी मिलनी है और 40 किलो आटा मिलना है, बाकी दालें जो भी चीज़ें चावल हैं तो वो मुकम्मल तौर पर यानी उसको वो फराहम की जाती है। अगर कोई बंदा उसके पास अगर पैसे उस वक्त कम है, वो थोड़ी चीज़ लेना चाहता है, वो उसके बैलेंस में है, वो 2-4 दिन 5 दिन बाद दोबारा आके वो अपनी बाकी बैलेंस वाली चीज़ को खरीद सकता है। और उसमें बड़ी शफाफियत है और किसी किस्म का कोई उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और बंदा या इनलीगल तौर पर कोई बंदा उसको यूज़ कर सके। निहायत शफाफ निज़ाम और तरीक़ाकार है। बहुत शुक्रिया। सैयद आबिद हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में बताया उन्होंने कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं और किस तरह से मोबाइल स्टोर्स जो हैं वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर लोगों की एक्सेस नहीं है और उनको फैसिलिटेट करते हैं। कुछ दीगर अहम मामलात पर बात कर ली जाए। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें रंग ले आई हैं। यूक्रेन से गल्ले की आलमी तरसील का मसला हल हो गया है। यूक्रेनी गल्ले की तरसील के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई है और ये तकरीब इस्तंबुल में हुई। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, यूक्रेन और रूस के वफूद और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा बहरा असद के रास्ते 2 करोड़ टन से ज़्यादा गल्ले की आलमी मंडियों में तरसील के लिए दोनों मुल्कों के वफूद के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, जो अब नतीजा खेज साबित हुए हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लाव्रोव का कहना है कि मगरब की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मुसलसल फ्राहमी ने रूस के अहदाफ बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन में मॉस्को के अहदाफ अब मशरकी इलाके डोंबास तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि दीगर इलाकों तक फैल गए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मगरब ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फ्राहम किए तो रूस अपने मकासद को मज़ीद वुसअत देने पर मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन से आलमी मंडी में खुराक की तरसील का मुआहदा तय पाया है। खुशाइंद है ये सिलसिला और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी खुराक के बहरान पर काबू पाने के हवाले से इस्तंबुल मुआहदा सफारतकारी की तारीखी फतह है। ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेन गंदों की तरसील से मुतालिक होने वाले मुआहदा इस बात का इरादा करता है कि तमाम बहरान बामानी मुज़ाकरात से ही हल किए जा सकते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी खुराक के बहरान पर काबू पाने में तुर्किया का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने इस शानदार कामयाबी पर तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को मुबारकबाद पेश की। और अब कुछ जिक्र हो जाए मौसम का। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी है। पंजाब, सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला अभी रुका नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हाफिजाबाद में 120 मिलीमीटर, कोट अद्दू 71, खानेवाल 66, फहीम यार खान 58, लिया 56 और भक्कर में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कसूर में भी बादल जमकर बरसे। कराची में गुलशन हदीद, फैसल बेस, जिना ट्रिब्यूनल, कुरंगी, सारी टाउन, DHA, सरजानी टाउन और यूनिवर्सिटी रोड के इलाकों में, सक्खर, घोटकी, पनुआकिल, खैरपुर और रोहड़ी में भी बारिश हुई है। दूसरी जानिब पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, पाड़ा चिनार, मालम जब्बा में भी बादल बरसे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 6 बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, दादू, उमरकोट, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। 2 दिन में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों का तीसरा बड़ा ताकतवर स्पेल गुज़िश्ता रोज़ दाखिल हुआ है और तकरीबन 1 हफ्ते तक के हवाले से इसके लिए प्रेडिक्शन की गई है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में इस स्पेल की वजह से बारिशें होंगी। महकमा PDMA बलूचिस्तान ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुतल्लिका इदारों के हुक्काम को भी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी एमरजेंसी की सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। आवाम से भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने, गैर ज़रूरी सफ़र करने, नशेबी इलाकों, डैमों और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की अपील की गई है। बलूचिस्तान में हालिया प्री मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 100 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम हालिया मानसून बारिशें सूबे में शदीद खुश्कसाली में कमी लाने में मुआवन साबित हो रही हैं और सूबे के बेशतर अजला में कायम डैमों के स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया है।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें बरसाने वाला एक मजबूत सिस्टम आज से सिंध में दाखिल हो जाएगा, जबकि कराची में ये सिस्टम कल दाखिल होगा और जिसके बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 26 से 27 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस मौसमी निज़ाम के ज़रिए असर कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का खदशा है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त शहर कायद के कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं बताई जा रही हैं और इससे बनने वाले गहरे बादल बताए जा रहे हैं। बारिश के बायस मौसम कराची में खुशगवार है। और पूरे पाकिस्तान के बाद अब हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत जुड़वां शहरों की। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है और साथ ही साथ सलमा आज दिन भर सुबह का आगाज़ ही बड़ी जानदार और तेज़ रफ्तार बारिश से हुआ था, जिसके बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाज़ेह कमी हो गई है। और बारिशों के बाद मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी हैं। मोहम्मद अमनान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 84% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में भी बादल खूब बरसेंगे। बारिशों के नए सिलसिले की वजह से पंजाब और सिंध के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, जिसके बायस NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की हैं। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी के खतरे के बायस सयाहों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत भी की जा रही हैं। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और मोहम्मद अमनान तो बता रहे थे क्या सूरत हाल रही है अब तक और आगे क्या सूरत हाल होगी मौसम की। सरदार सरफराज, आप मेट्रोलॉजिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मौसमियात सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब बताइएगा अब मौसम कैसा रहेगा? 26-27 जुलाई तक की तो पेशगोई कर दी गई है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग स्पेल है मॉनसून का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये ऑलरेडी उसमें ये स्पेल पिछले 21 जुलाई से या 20 जुलाई की रात से चल रहा है, जो पंजाब के बेशतर इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है। जैसे आपके सामने लाहौर में और इस्लामाबाद में और दूसरी जगहों पर जंग में और नीचे डेरा गाजी खान वगैरह पूरे पंजाब में तकरीबन बहुत तेज़ स्पेल हो चुका है। इसी तरह KP के बेशतर इलाकों में तेज़ स्पेल हो चुका है, जिससे अर्बन फ्लडिंग और ये सारी सूरत हाल देखने में आई। तो ये अब आज से सिंध पे फैल चुकी हैं ये मानसून हवाएं और सिंध के इस वक्त मशरकी जो एरियाज़ हैं, उमरकोट और मीरपुर खास और ऊपर सांगड़ वांगड़ उन एरियाज़ में सखर में उधर बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये अगले 3 से 4 दिन तक यहाँ रहेगा इसका सिलसिला और फिर बलूचिस्तान तक फैलेगा। तो इस दौरान में खासा तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है, ख़ासकर सिंध के बेशतर जो मशरकी अजला उनमें तो आज रात को और कराची में और बकिया जो वेस्टर्न साइड है यानी ठट्ठा, बदीन, ऊपर दादू और जामशोर और कमर शदात कोट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कल और परसों दोनों दिन ऑन एंड ऑफ बहुत तेज स्पेल होगा। उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा ज़ाहिर है कि सभी जगहों पर है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं, जो जनूबी अजला हैं, मकरान कोस्ट के साथ के जो शहर हैं आपके और मारा, पसनी, गवादर, इन सभी एरियाज़ में बड़ी तेज़ बारिश मुतवक्की है और 26 या फिर किसी जगह में 27 तक ये स्पेल जा सकता है। बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ी तफसील से बताया कि बारिशों का जो हालिया स्पेल है रिजवान, ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है, स्पेशली सिंध के कुछ इलाके जहाँ पर पानी जमा हो जाता है और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बहन भाइयों की मदद करे, आसानी पैदा करे उनके लिए और हालिया जो बारिशें हैं उनको रहमत का बायस बनाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं, जानी नुकसान हुआ है, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं।
اور یہ تمام صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس میں مجموعی طور پر ماحولیاتی تبدیلی کے بہت زیادہ اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیے اور ماحول کے تحفظ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔